Hello dear students, welcome to Education and All YouTube channel. Dear students, we have already discussed the points up to fuels. Means we are going to discuss about the point fuels in this video. So if you have not watched, please go to the playlist and watch the previous part or first part of the carbon compound. So let's start from fuels. So what is fuel? So let's see according to the book. So here given that a fuel is a substance which burns in air to produce heat energy. So this is the definition of a fuel. So what is a fuel? Fuel is a substance, any substance which burns in air to produce heat energy. Means fuel directly produce or provide us heat energy. Okay. So fuel is nothing but that provides heat energy. And here, hence burning of fuel is an exothermic reaction. So this is also a type of chemical reaction, exothermic reaction. The reaction in which heat is evolved is known as your exothermic reaction. Carbon and compounds of carbon are used as domestic fuels. Okay, so these are used widely in the house for various purpose like your cooking, so that's why it is known as domestic fuels. The chief property of a fuel is its calorific value. The first thing is what a fuel is a substance which burns in air to produce heat energy. Means fuels provides us heat energy, but how much heat energy is released by the fuels? So that is known as your calorific value. So what is calorific value? The amount of heat produced by complete combustion of a unit mass or volume of fuel. Fixed amount of substance will be taken, and what amount of heat energy was released by that substance is known as your calorific value. So complete combustion. Complete combustion means 100% utilization of the fuels. So after utilizing, what amount of heat is evolved, what amount of heat is gained from that fuel is known as your calorific value. High efficient calorific values are good fuels. तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताए fuels क्या है और यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जिक्र किया गया है। यहाँ पे ये क्या है ये भी हम लोग देखे। फिर लास्ट में ये भी कहा गया है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। तो हमने अभी देखा fuels वह होता है, वह सब्सटेंस, वह द्रव्य होता है जिसे हवा के मौजूदगी में अगर उसको बर्न किया जाए, जलाया जाए, तो वो हमें हीट एनर्जी दे सके। इसलिए ये हीट एनर्जी देता है, इसीलिए इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे फिर कहा गया कि कार्बन और कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, कोल्स हैं, कोक है, ये क्या किया जाता है, इनको घर में ज्यादा प्रयोग किया जाता है, घरेलू उपयोग में, इसीलिए इसको डोमेस्टिक फ्यूल भी कहते हैं। और एक मेन इसका प्रॉपर्टी होता है फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू। और ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? अगर हम लोग सब्सटेंस को 100% कम्प्लीटली जलाते हैं, एक फिक्स्ड यूनिट मास यानी कि एक इकाई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगर जलाएंगे, तो जितना वॉल्यूम या फिर जो भी उसको जलाएंगे, तो वो जितना हमें हीट देगा वो उसका हो गया कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड यानी कि जितने मात्रा में हीट वो इवॉल्व करेगा हीट। ओके, तो ये तो था फ्यूल्स। फ्यूल्स समझ में आ गया। फ्यूल्स कुछ नहीं है, सीधी सीधी बात, फ्यूल्स इज इक्वल टू हीट एनर्जी जिसका कैलोरीफिक वैल्यू अच्छा होना चाहिए। वैसे तो हर चीज को जलाने पे आग मिलता है, किसी में कम मिलता है, किसी में ज्यादा मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सॉलिड फ्यूल्स। वुड, सॉलिड फ्यूल्स में क्या है यहाँ पे? वुड, चारकोल, कोल एंड कोक आर सम ऑफ द कॉमनली यूज सॉलिड फ्यूल्स। क्या क्या नाम लिए? वुड, चारकोल, कोल एंड कोक, ये सॉलिड फ्यूल है जिसको हम लोग ज्यादातर सुनते हैं, जानते हैं। द कार्बन प्रेजेंट इन दिस फ्यूल्स बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड।
Coal contains carbon and many other substances. On being heated in deficient supply of air, it produces an oily liquid along with coke and coal gas. The oily liquid is known as coal tar. Coke contains higher proportions of carbon than coal. चलिए यहाँ पे बहुत कुछ बता दिया। हम आपको बता दें यहाँ पे पहले तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि कौन कौन सा सॉलिड फ्यूल्स है। वुड हो गया, चारकोल हो गया, कोल हो गया, कोक हो गया। इनको अगर ऑक्सीजन यानी कि सप्लाई में अगर बर्न करेंगे तो ये हमें क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाता है। ओके, कार्बन प्लस O2 CO2 ये होता है। अगर हम लोग इसको बिना हवा में जलाएं यानी कि ऑक्सीजन का लिमिटेड सप्लाई, तो वो क्या करता है, कुछ ऑयली लिक्विड देता है जिसे हम लोग कोल गैस कहेंगे। ओके, सॉरी इट प्रोड्यूस, उसे कोल टार कहते हैं, कोल गैस नहीं कोल टार कहते हैं। तो ये तो ठीक है, उसके साथ साथ कोक भी मिलेगा। अलॉन्ग विथ कोक एंड कोल गैस ये दोनों मिलता है। तो जो ऑयली लिक्विड निकलता है उसे कोल टार कहें, और जो कोक बनता है ना, वैसे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से कार्बन को अगर जलाएंगे तो वो कोक क्या होता है, हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन देन कोल। जो आमतौर पे जो कोयला होता है उससे ज्यादा कार्बन कोक में होता है, यानी कि बहुत अच्छा खासा वो जलता है, अच्छा खासा कैलोरीफिक वैल्यू भी है कोक का। ओके, आगे बढ़ते हैं लिक्विड फ्यूल्स। लिक्विड फ्यूल्स आप लोग तो देखे ही हो, इसे हम लोग ज्यादातर बाइक में जितने भी व्हीकल्स हैं लिक्विड फ्यूल्स यूज करते हैं। द कॉमन लिक्विड फ्यूल्स आर केरोसिन ऑयल, देखे होंगे, इसका घर में भी उपयोग किया जाता है स्टोव जलाने के लिए। पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल एंड डीजल को हम लोग बाइक या ट्रैक्टर ये सब चलाने के लिए यूज करते हैं। They are all hydrocarbons and are obtained by fractional distillation of crude oil। ये होगा आपका रॉ मटेरियल्स क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम, कल पेट्रोलियम। ओके, क्रूड ऑयल भी कहते हैं, याद रखना है इसको। अब यहाँ पे देखो हीट वैल्यू ऑफ लिक्विड्स, हीट वैल्यू ऑफ लिक्विड फ्यूल्स। सबसे पहले देखते हैं पेट्रोल का हीट वैल्यू है 47,000, केरोसिन का है 45,000, डीजल का है आपका कितना हो गया, डीजल का है 45,000, केरोसिन और डीजल का बराबर है। फिर स्पिरिट जो है इसका केमिकल नेम इथानॉल है, ये आपका 28,000, बहुत कम है इनके कंपैरिजन में, बाकी ठीक है। तो हम लोगों को कौन सा बढ़िया होगा, अच्छा खासा कैलोरीफिक किसका है, 47,000 पेट्रोल का है, तो दिस इज ए गुड फ्यूल। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोला, पेट्रोलियम इज नेचुरली ऑकरिंग मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्या क्या रहता है पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं इसमें। यूजुअली लिक्विड क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल कहा जाता है पेट्रोलियम को। इसमें हाइड्रोकार्बन रहते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। पेट्रोलियम इज बिलीव्ड टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक डेब्रिस। ऑर्गेनिक डेब्रिस, जो ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर होता है ना, उसको डेब्रिस कहा जाता है। चीफली ऑफ प्लैंकटन एंड सिंपल प्लांट्स। प्लैंकटन कहाँ पे पाया जाता है, ये समुद्री जीव है, समुद्री पेड़ पौधे, पेड़ तो नहीं कह सकते हम लोग वहां पे, तो समुद्र में दिखाई देने वाले ये कुछ ग्रास है, प्लैंकटन। तो ये प्लैंकटन है, प्लैंकटन से बनते हैं, और सिंपल प्लांट्स जो कि समुद्री छोर पे पाया जाता है। So which have been rapidly buried in fine grained sediment under marine condition। marine condition, marine यानी कि सी वाटर, सी वाटर में जो कंडीशन होता है उसमें क्या होता है, ये buried यानी कि गड्ढे में ढक आ जाता है। ये ड्यू टू डिफरेंट नेचुरल कैलामिटी से होता है, ये खास करके अर्थक्वेक से, वो क्या होता है गड्ढे में ढक जाता है, फिर वो क्या होता है देखते हैं क्या होता है। आफ्टर सम बायोडिग्रेडेशन यानी कि उसमें डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, डिग्रेडेशन घटना, उसका सड़ना गलना। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो सड़ने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसका जो टेम्परेचर है वो भी ज्यादा होना चाहिए, एंड प्रेशर। तो इतना कंडीशन में वो क्या होता है, कॉज क्रैकिंग,
यानी कि उसमें फटना शुरू हो जाता है। क्रैक यानी कि फटना, यानी कि उसमें वो छोटे छोटे टुकड़े भी बढ़ जाता है। ये जो है ना, क्या लिए हम लोग यहाँ पे नाम लिए थे उसका, प्लैंकटन एंड सिंपल प्लांट्स जो बरीड हो गए थे मेराइन कंडीशन में। इसका हाई टेम्परेचर और प्रेशर में ये क्या होगा, वो वहां पे बायोडिग्रेडेशन होगा उसका, जिसके चलते वो स्मॉल जो सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, क्रैकिंग होता है, एंड द पेट्रोलियम दैट इज योर ऑयल इज प्रोड्यूस्ड। उसी वजह से ये प्रोड्यूस होता है। समझ में आ गई बात? द पेट्रोलियम इज डार्क ऑयली लिक्विड विथ अनप्लीजेंट ऑर्डर। अब देखो, हम लोग जो पेट्रोल यूज करते हैं ना, वो पेट्रोलियम नहीं है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है वो। तो जो पेट्रोलियम होता है क्रूड वेल, वो बहुत ही गाढ़ा काला रंग का होता है, और इसका जो गंध होता है ना, हम लोगों के लिए खुशहाल नहीं होता, थोड़ा सा अलग गंध होता है इसका। इट इज यस, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड फ्लोट्स ऑन इट। ज्यादातर क्या होता है, जो ऑयल होता है ना, वो वाटर में फ्लोट्स करते हैं, तैरते हैं पानी में, और पानी में डूबते भी नहीं है। तो इसीलिए कहा गया पेट्रोलियम भी क्या होता है, ये वाटर के साथ मिलता नहीं है, घुलता मिलता नहीं है, इनसॉल्युबल है, उसके साथ साथ उसमें तैरता है। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे, पेट्रोलियम इज यूजुअली फॉर्म्ड इन सेडिमेंटरी रॉक्स। ये टाइप ऑफ रॉक्स एंड सेडिमेंटरी रॉक्स। सो इन इंडिया पेट्रोलियम इज फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ आसाम एंड गुजरात। ये दो जगह में पाया जाता है, आसाम और गुजरात, एंड ऑल्सो नियर बॉम्बे, बॉम्बे हाईवे, बॉम्बे यानी कि बॉम्बे से बॉम्बे जो हाईवे है, इन द अरबियन सी, अरब सागर में बॉम्बे हाईवे में के नजदीक में यहाँ पे मिलता है, बॉम्बे अरबियन सी में। रिसेंटली पेट्रोलियम हैज ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड इन गोदावरी एंड कावेरी बेसिन्स। ये नदी के जो भी इलाका है, बेसिन यानी कि उसका समतल अंचल, वहां पे भी पाया गया है। तो कहाँ कहाँ पे पेट्रोलियम पाया गया? एक आसाम हो गया, आसाम पे मिल रहा है, गुजरात में मिल रहा है, और बॉम्बे हाईवे नियर अरबियन सी में मिल रहा है। तो हमने तो देखा ये मैक्सिमम सी मेराइन कंडीशन में मिलता है, तो नदी या समुद्र किनारे ही इसका मिलना पॉसिबल रहता है। ओके, पेट्रोलियम का समझ में आ गया। आगे क्या दिया है देखते हैं यहाँ पे कहा है, पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोड्यूसिंग द फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होता है, आपको तो पता है, मैथ्स में आप पढ़े हो। फ्रैक्शन में क्या होता है, हम लोग उसको एक हिस्सा को अलग अलग हिस्सा में बांटते हैं, 1 2 3। तो जैसे एक हिस्सा को हम लोग दिखाए तो 1/3, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शनल नंबर होता है। फ्रैक्शन को दिखाने के लिए फ्रैक्शनल नंबर का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पेट्रोलियम को ऐसे बारी बारी में बांटेंगे उसका लेवल वाइज। तो वो होता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में हर क्लास में। तो हमें क्या क्या देता है ये, गैसोलाइन, केरोसिन, डीजल ऑयल, fuel oil, lubricating oil, and asphalt. So undesirable compounds may be removed by solvent extraction treatment with sulfuric acid. जो चीज हमें नहीं चाहिए उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करके हम लोग उसको निकाल सकते हैं वहां से, और जो लोग चाहिए उनको अलग अलग फ्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। And less valuable compounds converted into more ones by cracking। एक प्रोसेस होता है यहाँ पे जो हमें कम उपयोगी है, जो कम कीमत वाला है, मतलब जिसका वैल्यू कम है, उसको हम लोग क्रैकिंग करके उसको अलग अलग तोड़ तोड़ के या फिर कुछ मिक्स करके उसको हाई वैल्यूएबल कर सकते हैं। अल्किलेशन एंड पोलीमराइजेशंस। तो ये एक बताया गया है। अल्किलेशन क्या है, अल्किल ग्रुप आप लोग पढ़ोगे, अल्केन का एक उसमें बॉन्डिंग होता है, वो अल्किल फॉर्म करता है। अल्किल और पोलीमराइजेशन का सीधा एग्जांपल तो आपका प्लास्टिक फॉर्मेशन से। तो ये सब प्रोसेस करके हम लोग उसका वैल्यू बढ़ा सकते हैं, मोर वैल्यूएबल। क्या क्या, अल्किलेशन एंड पोलीमराइजेशन।
पॉलीमराइजेशन देखेंगे, इसका प्लास्टिक हम लोग क्लास 8 में देखे भी हैं। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम इज चीफली अल्केन, अभी हम नाम ले रहे थे अल्केन का, सेचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये क्या होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है, ये आपका केमिस्ट्री का एक एक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। एरोमेटिक, एरोमा मीन्स इसका स्मेल, तो जिसका स्मेल अच्छा आता है वो हो गया एरोमेटिक। फिर यहाँ पे एलिसाइक्लिक, साइक्लिक तो साइक्लिक, फिर एलिसाइक्लिक क्या है इसको हम लोग हायर क्लास में देखेंगे। ठीक, बेंजीन का नाम सुने हो, बेंजीन भी एक साइक्लोबेंजीन कहते हैं। बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है ऐसे, सीधी बात बोले तो C6H6। अब यहाँ पे कार्बन, कितना कार्बन है, 6 कार्बन है यहाँ पे, तो हर कार्बन देखो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनको कंप्लीट करने के लिए एक एक यहाँ पे हाइड्रोजन फिर डबल बॉन्ड होता है। ये जो राउंड लगाया हो ना वो डबल बॉन्ड का है, तो ये 2 हो गया, तो इसको और कितना चाहिए, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। तो ऐसे हम लोग इसको हर क्लास में देखेंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड अभी जाना नहीं है, अभी बस सुने रहो कौन कौन सा नेम क्या है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। Asphalt is used in road buildings and waterproofing of buildings। इसको कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जाता है, रोड का कंस्ट्रक्शन में चलता है, या फिर बिल्डिंग में अगर पानी का लीकेज होता है, सीपेज बोलते हैं हम लोग, तो वहां पे क्या करेंगे, asphalt का यूज करके उसको रोकथाम कर सकते हैं। तो वाटर को ये रेजिस्ट कर देता है, एंट्री नहीं करने देता वाटर को बिल्डिंग में या फिर रोड में। नेक्स्ट है इथेनॉल एंड अल्कोहल इज ऑल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन स्पिरिट लैंप्स। इथेनॉल नाम लिए थे, केमिकल नेम है स्पिरिट का, तो ये क्या होता है, एक अल्कोहल है जिसे स्पिरिट लैंप में यूज किया जाता है। ये लैब में यूज करते हैं, इसमें ज्यादा हम लोग डोमेस्टिक यूज नहीं होता ये। अल्कोहल व्हेन मिक्स्ड विद पेट्रोल इज कॉल्ड पावर अल्कोहल। बाप रे, अल्कोहल में मिक्स करेंगे किसको, पेट्रोल को, तो वो पावर अल्कोहल कहलाएगा। A mixture of dimethyl hydrazine and nitric acid is now used in rockets and missiles। तो ये हाई कैलोरीफिक वैल्यू बन जाते हैं अल्कोहल के साथ मिलाने पर, तो ये रॉकेट में यूज होता है, मिसाइल्स में यूज होता है, किसको किसको, मिक्सचर ऑफ डाइमिथाइल हाइड्रोजन और नाइट्रिक एसिड को। ओके, फ्रैक्स, यहाँ पे देखो दिया हुआ है फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शन यानी कि हिस्सा हम बता चुके हैं। तो पहले फ्रैक्शन जो होता है गैसेस का, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट रेंज 20 डिग्री सेंटीग्रेड और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ये 1 to 4। ये हम लोग देखे थे कार्बन में 1 से 5 तक का क्या होता है, गैसीय स्टेज में रहते हैं, बाकी उससे हायर हो गया तो लिक्विड स्टेज में आ जाते हैं। इनका उपयोग किस लिए किया जाता है, इनका उपयोग नेचुरल गैस या बॉटल गैस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम, इसका टेम्परेचर रेंज है 30 to 120 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें कार्बन की संख्या होती है 5 to 10, और ये ऑटोमोबाइल इंजिन के लिए यूज किया जाता है एज ए फ्यूल। नाफ्था, तो नाफ्था का है 120 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 to 10 कार्बन एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स के लिए यूज किया जाता है। पेट्रोकेमिकल्स, एक्चुअली पेट्रो मीन्स रॉक होता है, तो पेट्रोकेमिकल्स ये आपका वही मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन, ये सब में यूज होता है। नेक्स्ट है केरोसिन, केरोसिन का 180 to 260 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 10 to 14 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है। ये जेट इंजन हाउस होल्ड फ्यूल्स के लिए यूज किया जाता है, जेट इंजन। ओके, अब है गैस ऑयल, जिसे हम लोग डीजल कहते हैं, 260 to 340 डिग्री सेंटीग्रेड है, 14 to 20 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं इसमें। मोटर्स एंड इंजन के फ्यूल के हिसाब से यूज होता है ये। नेक्स्ट है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल और वॉक्सेस, मोम जो होता है, या फिर जो ल्यूब्रिकेटिंग मतलब जिसको हम लोग यूज करते हैं ग्रीस टाइप का, ओवर 340 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 20 से प्लस कार्बन रहते हैं। ग्रीस, ल्यूब्रिकेशंस इन मशीन्स एंड इंजिन्स, तो लुब्रिकेंट पर्पज में यूज होता है। नेक्स्ट है फ्यूल ऑयल, 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, इसमें बहुत भारी संख्या में कार्बन होते हैं। फ्यूल फॉर शिप्स एंड पावर स्टेशंस, तो जहाज या फिर जो पावर स्टेशन होते हैं ना इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन का, वहां पे इसका यूज किया जाता है। और लास्ट में जो सबसे बचता है
इसका टेम्परेचर बताया गया नहीं है, 500 से तक ये था, well over 500, तो उससे ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 500। तो मोर देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, वेरी लार्ज कार्बन रहते हैं इसमें। और ये रोड सरफेस, रोड का जो सतह होता है ना, सरफेस, क्या बोलते हैं, पीचू या फिर कुछ टाइप का बोलते हैं उसको, ये असफल्ट, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसमें दिया जाता है ताकि जो वाटर से वो उसका कंडीशन खराब ना हो, ठीक ठाक हो रहे। ओके, तो ये तो था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस। अब आगे बढ़ते हैं गैसियस फ्यूल। हम लोग सॉलिड फ्यूल देखे, गैसियस देखे, अब देखेंगे, सॉरी सॉलिड देखे, लिक्विड देखे, अब गैसियस देखेंगे। Gaseous fuels are used for domestic as well as industrial heating. घर के साथ साथ उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। Some common gaseous fuels are natural gas, bottle gas यानी कि LPG गैस जो सिलेंडर होता है, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस एंड कोल गैस। तो नेचुरल गैस इज obtained from petroleum well and contains about 80% methane. Gobar gas also contains methane and is a kind of biogas produced by animal feces. गोबर गैस घर घर में इसको बनाया जाता है, टंकी से गोबर को सड़ा के गला के उससे मीथेन निकाला जाता है। मीथेन हम लोग देखे थे CH4, ये भी एक बढ़िया हाई एफिशिएंट कैलोरीफिक वैल्यू इसका बढ़िया है। तो 80% मीथेन इसमें रहता है, हम लोग का जो नेचुरल गैस रहता है, ठीक है, ये बायोगैस की तरह है, तो इसका उपयोग भी सेम किया जाता है। बॉटल गैस कॉन्टेंस प्रोपेन एंड ब्यूटेन, हम लोग देखे थे, एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, इसे बॉटल गैस भी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फिर नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस। क्या है प्रोड्यूसर गैस? इज ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन ऑफ द एयर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। बाप रे, ये दोनों का मिक्स होता है, नाइट्रोजन का होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, जो कि हमारे जो मतलब टॉक्सिक इन नेचर कार्बन मोनोऑक्साइड। 2/3 by volume is nitrogen and 1/3 volume is carbon monoxide। जैसे 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा होता है नाइट्रोजन का, और 3 हिस्सा में से कितना बच गया? 1 हिस्सा बच गया, वो होता है आपका कार्बन का। ये मिक्सचर में आपका बनता है ये प्रोड्यूसर गैस। Producer gas is not considered a good fuel because 2/3 nitrogen of it has no fuel value। अब ये तो इसका कोई जलने का कोई लक्षण है नहीं, नाइट्रोजन तो बराबर बना के रखता है, ये मतलब जलने में सहायक नहीं होता, हेल्प नहीं करता, ये नेचुरली रहता है इसको। तो ये हिस्सा तो जलता ही नहीं है, ये हिस्सा ही सिर्फ जलता है। कौन सा वाला? यहाँ पे जो हम लोग देखे कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, तो ये हिस्सा ही जलता है, तो ये वाला नहीं जलता, तो ज्यादा हिस्सा नहीं जलता, कम हिस्सा जलता है, तो इसलिए गुड फ्यूल्स नहीं है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे वाटर गैस। वाटर गैस, अब ये होता क्या है? वाटर तो वाटर, फिर वाटर गैस कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बनता है आपका वाटर गैस। ओके, तो ये क्या करता है? कोल गैस कंटेन्स मोस्टली हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कोल गैस इज ए टाइप ऑफ वाटर गैस। ओके, अब हम लोग देखेंगे ये टाइप्स ऑफ फ्यूल्स देखे, ये लोग जलते कैसे हैं, बर्न कैसे होते हैं। वो होता है कंबसन। कंबसन रिफर्स टू ए फास्ट केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच इज accompanied by release of heat and emission of लाइट। तो कंबसन में क्या होता है? आपको दो चीज मिलता है, एक हीट एनर्जी मिलेगा और एक लाइट एनर्जी भी मिलेगा। तो ये फ्यूल का कंबसन होता है फास्ट केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि उनका बदलाव, which is accompanied by release of heat and emission of light। release of heat and emission of light, ठीक है, लाइट भी निकलना चाहिए, हीट भी मिलना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, रिएक्शंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस विद ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर ये हीट इवॉल्व होता है, देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ कंबसन इज आल्सो नोन एज बर्निंग। तो सीधी बात कहें तो ऑक्सीजन जिसमें यूज होता है वो तो कंबसन है, और ये बर्निंग भी हो गया। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मैग्नीशियम, कार्बन एंड मीथेन बॉर्न लिबरेट हीट एंड लाइट। कौन कौन से जलने पर ये देते हैं हीट लाइट? मैग्नीशियम, कार्बन एंड मीथेन। Thus combustion is a process of oxidation। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन कंज्यूम होता है।
तो मीथेन का सिंबल बताए थे हम यहाँ पे। तो मीथेन क्या होता है, दो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, बॉन्डिंग होता है, तो क्या होता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और उसके साथ साथ वाटर वेपर भी निकलते हैं, उसके साथ साथ आपको वेरी सफिशिएंट अमाउंट में आपको हीट और लाइट भी मिल जाता है। ओके, तो ये तो था मीथेन का। उसी तरह मैग्नीशियम को अगर आप जलाओगे ऑक्सीजन के साथ तो वहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, उसके साथ साथ हीट एंड लाइट। कार्बन को जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन को जलाओगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि दैट इज ऑल्सो कंपाउंड ऑफ कार्बन। बट मैग्नीशियम में वो कार्बन नहीं है, इसलिए मैग्नीशियम खुद जल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यह आप हायर क्लास में ज्यादा पढ़ोगे, वो सभी समझे रहो। अब यहाँ पे देखो, when a substance catches fire itself such as a yellow phosphorus, the process is called spontaneous combustion। आपको याद रखना है, येलो फास्फोरस जो होता है ना, ज्वेलरी वाले रखे रहते हैं, ये ऑटोमेटिक खुद से आग पकड़ लेता है। कैचेस फायर इटसेल्फ, खुद से आग लग जाता है, सो इट्स टू डेंजरस। मतलब ये इसका टेम्परेचर में आग लगता है, अपने आप आग नहीं लग जाता, उसका टेम्परेचर पाने पर वो अपने आप हमको माचिस जलाना नहीं पड़ता बस। The burning of kerosene in stove is called rapid combustion। ये रैपिड कंबसन हो गया। स्पॉन्टेनियस कंबसन क्या होगा, जो खुद से आग पकड़ता है, और केरोसिन का जलना हो गया रैपिड कंबसन। उसी तरह व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ आयरन टू फॉर्म रस्ट, ये जंक होता है ना, ये क्या होता है, इट लिबरेट्स लिटिल स्लो हीट एंड इज नोन एज स्लो कंबसन। तो तीन तरह का कंबसन देखे, एक हो गया आपका क्या देखे, फर्स्ट हो गया आपका स्पॉन्टानियस कंबसन। ओके, स्पॉन्टानियस कंबसन। दूसरा क्या देखे, रैपिड कंबसन। और तीसरा क्या देखे, स्लो कंबसन। तो ये थ्री टाइप ऑफ कंबसन देखे। कंबसन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन और लिबरेशन ऑफ हीट एनर्जी। अब देखो, जब कंबसन होता है तो क्या फॉर्म होता है, फ्लेम फॉर्म होता है। फ्लेम यानी कि लौ, दिया जलाने पर ये जो लौ बनता है ना, वो होता है फ्लेम। Flame refers to a hot luminous mixture of gases undergoing combustion। जो गैस जलने से ये लाइट या हीट देते हैं, वो होता है आपका कंबसन। लुमिनस यानी कि जिनका लाइट होता है, लाइट निकलता है। तो यहाँ पे देखो, the chemical reaction in a flame have been mainly free radical chain reaction, and the light comes from the fluorescence of excited molecules or ions or from incandescence of small solid particles। अब ये तो बहुत कुछ बोल दिया गया, हमें तो ये भी नहीं पता रेडिकल है क्या। तो रेडिकल चेन रिएक्शन, इसको हम लोग हायर क्लास में देखेंगे। फिर कहा गया यहाँ पे फ्लोरोसेंस ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। अब जब एनर्जी छोड़ने क्या बोलते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए या फिर लेने के लिए जब स्टेज में रहता है तो वो होता है एक्साइटेड। तो अब ये भी हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 9-10 में है ये। तो बस यही कहा गया है, यहाँ पे यही समझ लेते हैं। तो ये जो लाइट कहाँ से आता है, वही एक्साइटेड मॉलिक्यूल से आता है। ओके, तो जैसे ये कार्बन हो गया, कार्बन का जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स है वो रिलीज या डिक्रीज होने में, मतलब रोने को उसको एक्साइटेड बोल रहे हैं ना, तो वहां से ये सब आ रहा है। फिर यहाँ पे देखो, देयरफॉर ओनली दो सब्सटेंसेस व्हिच वेपोराइज ऑन बीइंग हीटेड बर्न विथ ए फ्लेम। ऐसे चीज, दो सब्सटेंस व्हिच वेपोराइज, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं गर्म करने से, वही फ्लेम देते हैं। हर चीज फ्लेम नहीं देते। All gaseous substances produces a flame when they undergo combustion। ज्यादातर ये गैस में पाया जाता है। The outer zone of a flame which is faintly bluish in color has a highest temperature। ये जो फ्लेम बन रहा है ना, इसका जो आउटर जोन है ब्लू कलर का, ये सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है। Thus a flame is a combustion zone, इट्स लुमिनेंस बीइंग ड्यू टू एक्साइटेड पार्टिकल्स। ये भी हम लोग देखे थे ना, कार्बन का एक्साइटेड पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन होता है या आयन होता है, वो एनर्जी रिलीज या गेन के लिए रेडी होते हैं। सो मॉलिक्यूल्स एंड आयंस का एक्साइटिंग स्टेज ही होता है आपका लुमिनेंस। वेरी रैपिड कंबसन ऑकर्स इन एन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट, बहुत तेजी से वहां पे कंबसन होता है। ईच कंबसन रिएक्शन हैज इट्स ओन
इग्निशन टेम्परेचर, ये होता है जरूरत टेम्परेचर उसको स्टार्ट करने के लिए। जैसे हम लोग बाइक को स्टार्ट करने के लिए टेम्परेचर चाहिए, किक मारते हैं या फिर सेल्फ प्रेस दबाते हैं, तो वहां पे टेम्परेचर नहीं होने पर स्टार्ट नहीं होता। तो जो टेम्परेचर में आग पकड़ता है वो होता है इग्निशन टेम्परेचर, बिलो व्हिच इट कैन नॉट टेक प्लेस, उससे कम तापमान में ये जलेगा ही नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो काफी लंबा चौड़ा हो चुका ना, फिर भी हम लोग कवर कर लिए हैं। तो जो भी वर्ड या जो पोर्शन आपको समझ में नहीं आया है कमेंट्स करना, मैं आपको उसको थोड़ा सा और डिटेल समझा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो बने रहिए हमारे साथ। ये वीडियो को लाइक करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए जब हम इसका वीडियो दे देंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।